Once again, I welcomes you here in my class of physics. So students, within our previous class we have studied about electric charges, and the name of this chapter is electric charges and field. This is the first chapter of your physics part A. So I hope you all know that this chapter is very important. If you are able to understand this chapter, then you are easily understand 7 chapters of this book. So students, within our previous class we have studied about physics, okay, and physics is the branch of science which deals with nature and its natural phenomena. On behalf of that we are able to understand about nature, okay. Our nature is made up of two type of things, that is matter and radiation. Now after that we are just going through matter. So matter, between two matter we just see that whenever we are rubbing two matters, then there is one force of attraction exerted between two matter. So that force of attraction is there between the two matter, that is due to the charge on the matter, okay. Whenever the matter is being charged, then the force of attraction should be there between two matters, okay. So what is the basic concept of charge? The basic concept of charge, or the cause of charge, is transfer of electron. How the charge cause? The charge causes due to the transfer of electron from one matter to another matter, okay. This we have already uh, studied in our previous class, okay. So whenever the charge is transferred, or whenever the electron is transferred, or the charge on the single electron is transferred, that is elementary charge, then both the matter should get charged. So on behalf of that, the charges may be of two types. Those are positive charge and negative charge. The body which have excess of electron is negatively charged, and body which have the deficiency of electron is negatively charged, okay. So this much we have studied in our previous class. We have also studied about charges on electron, proton and neutron. As we know that the matter is made up of atoms or molecules, okay. Sorry, whatever be the matter is there, that is always made up of either atoms or molecules, okay. And atom is the smallest constituent particle by which the matter is formed, and the atom is again made up of three particles, that is electron, proton and neutron, okay. Atom is made up of three particles, that is electron, proton and neutron, in which the electrons are revolving around the nucleus, and nucleus is made up of neutron and proton. Neutron and proton. Nucleus is positive and electrons are negative, okay. So the electron have charge, uh, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and proton have charge, that is minus 1.6 into 10 to the power minus 19, and proton have 1.6 into 10 to the power 19, okay, that is plus. And neutron have no charge, no charge, okay. So this charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is elementary charge. This is also called elementary charge. After that we have studied about the mass of electron, mass of proton and mass of neutron, okay. So mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, and mass of proton is 1.6 into 10 to the power minus 27 kg, and mass of neutron is also 1.6 into 10 to the power minus 27 kg, okay. There should also have some difference in the mass of proton and neutron, but that we are able to study in our
atoms and nuclei chapter. Okay, so there should also have some basic difference. यहाँ भी कुछ एक difference होता है, but generally up to the 1 decimal places that is same. Now after that, अब देखिए इसके बाद में this is the constituent particles of atom. Okay, atom के ये 3 particles हैं और हम पढ़ेंगे आगे कि एटम के अंदर इन पार्टिकल्स के अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं. ओके, सो दैट वी विल स्टडी लेटर. अब बेटा इसके बाद देखिए, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफरिंग, सपोज इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन टू अनदर, एक से दूसरे पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, then here the excess of electrons, so this is negatively charged, and here the deficiency of electrons, so that is positively charged. Okay, means जब तक ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ था at that time both the matter, suppose here 1 and 2 दोनों हमारे मैटर हैं, और जब तक ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ था at that time both are neutral, whenever the electron is transferring. Why the electron is transferred? That is transferred due to the rubbing. Suppose हमने एक मैटर को और दूसरे मैटर के साथ में थोड़ा रब कर दिया, तो ये यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया. ठीक है, अब ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हुआ दैट इज नेगेटिवली चार्ज, जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई दैट इज पॉजिटिवली चार्ज. सो अब ये जो सिचुएशन हमारी आई, इसकी यहाँ आई, तो इसमें हम जहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया नेगेटिव लगा देंगे, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई पॉजिटिव लगा देंगे. तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा नेगेटिव चार्ज. कल हमने लास्ट क्लास में जाते जाते क्वेश्चन पूछा था कि विच इज हैवियर, आइदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज हैवियर और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज हैवियर. सो योर आंसर इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज हैवियर बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग here the number of electrons are coming and the mass of single electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमेशा क्या होगा, हैवियर होगा एज कंपेयर टू द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. ठीक है, अच्छा, जब इस टाइप से रबिंग होती है बेटा, सो एट दैट टाइम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो भी आएगा दैट इज इक्वल. बाय रबिंग व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन मैटर टू अनदर मैटर, then at that time both the charges are equal. One matter have the negative charge and other have the positive charge. Okay, so I hope this much you all have understand. ये बात समझ में आई बेटा सबके? बेसिक बात है, छोटी क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम यहां देखते हैं. Now what we see here, the electron is transferred and the body is getting charge. And what is the evidence that the body is getting charge? अब देखिए इसका एविडेंस सुन लीजिए. Suppose here is, this is one duster and this is one chalk. Okay, now we are just taking them, हमने ये सेपरेट दोनों ले. ओके, नाउ वी सी दैट हम इन दोनों को पास में लेके आ रहे हैं. सो हम ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हैं, ना फोर्स ऑफ रिपल्सन देख रहे हैं. यानी चाहे हम इसको पास ले जाए या दूर ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, सो इट मीन्स दैट दीज बोथ मैटर आर न्यूट्रल. ये दोनों कैसे हैं, न्यूट्रल है. इनके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है. ओके, सपोज अब मैंने चौक को यहाँ अपनी शर्ट से रब कर लिया. ठीक है, चौक को मैंने शर्ट से रब कर लिया. ऑब्वियसली हो सकता है कि इस चौक से इलेक्ट्रॉन मेरी शर्ट पे चले गए हों या मेरी शर्ट से इलेक्ट्रॉन से चौक पे आ, क्योंकि मैंने इसको रब किया है. ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस से जो यहाँ आपको अभी एक्सप्लेन किया है. अगर इलेक्ट्रॉन इससे चले गए हैं या इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए, सो with this what will happen, it will getting charge, it will getting positively or negatively charge. अब हमें नहीं पता है कि
पॉजिटिव चार्ज हुआ या नेगेटिव चार्ज हुआ, ठीक है। विद इन द सेम वे अब हमारे पास में ये डस्टर है, इसको भी हमने सपोज कहीं पे रब कर लिया और यहाँ भी हमने देखा कि ये भी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब हम जैसे ही इन दोनों बॉडीज को पास पास लेके आए तो हमने देखा कि दीज टू बॉडीज आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि एक के पास पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक के पास नेगेटिवली चार्ज होगा, तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ओके, इफ दे आर रिपेलिंग ईच अदर तो हम मानेंगे कि दोनों के पास सेम चार्ज है, या तो पॉजिटिवली चार्ज है दोनों के पास या नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही है। ओके, सो सेम चार्ज बॉडीज आर repel each other and opposite charge bodies attract each other. This much we have studied in our previous class. ये हम अपने previous class में पढ़ ही चुके हैं। 10th में भी हमने पढ़ा है और either 8th और 7th और 9th में भी हमने ये पढ़ा हुआ है। ओके, so अब हमने किया कि now these two bodies are getting charge. अब हमने देखा कि एक बॉडी चार्ज है। अब हम यहाँ एक कंडीशन समझेंगे कि इनिशियली व्हेनेवर दीज टू बॉडीज आर न्यूट्रल दे शोइंग सम प्रॉपर्टीज, दे आर नॉट अट्रैक्टिंग ईच अदर, दे आर नॉट रिपेलिंग ईच अदर, दे आर कंप्लीटली न्यूट्रल। व्हेनेवर वी आर जस्ट चार्ज देम, देन आफ्टर दैट दे शो सम प्रॉपर्टीज, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। ओके, अच्छा, इसके साथ ही इनके ऊपर और भी कई सारी प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, सबसे पहले ये बॉडी चार्ज हो गई, ये दूसरी बॉडी के साथ में अट्रैक्शन कर रही है, ये दूसरी बॉडी के साथ में रिपल्सन कर रही है। इसके बाद में और हम देखेंगे कि इन दोनों बॉडीज के बाद पास में क्या आ गया, इन दोनों बॉडीज के पास में एक पोटेंशियल आ गया, ठीक है। इन दोनों बॉडीज के आसपास एक फील्ड जनरेट हो गया जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, फील्ड जनरेट हो गया। ओके, और इस तरीके की कई सारी प्रॉपर्टीज हमारी आ गई। जैसे ही ये बॉडी चार्ज हुई तो चार्ज होते ही इनके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टीज आ गई। अब उन हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टीज को धीरे 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 हम पढ़ते जाएंगे और हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। 7 चैप्टर्स हमारे इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। दिस इज ओनली द थिंग, दिस इज द इनिशियल थिंग कि हमने कोई भी न्यूट्रल एक मैटर को लिया, न्यूट्रल एक बॉडी को लिया, देन आफ्टर दैट इट इज गेटिंग और इट इज बीइंग चार्ज, आफ्टर दैट द सो मेनी प्रॉपर्टीज आर कमिंग ऑन दैट मैटर और दैट बॉडी, सो वन बाय वन वी आर स्टडिंग ऑल दोज प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई से डिनोट कर दिया, फिर उसके बाद में दूसरी चार्ज और अनचार्ज बॉडी को हम लेके आएंगे तो फिर उसके अंदर क्या हुआ। ओके, अब हमने यहाँ पे इन सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए कुछ और फर्दर डिवीजन कर लिया। हाउ वी आर डिवाइडेड कि व्हेनेवर द चार्ज इज बीइंग एट रेस्ट और व्हेनेवर देयर इज स्टैटिक चार्ज। अब हमने देखा कि ये बॉडी चार्ज हो गया, इसके ऊपर चार्ज बिल्कुल इसी के ऊपर स्थिर है, द चार्ज इज एट रेस्ट और चार्ज इज स्टैटिक। So at that time, whatever be the properties shown by that matter, those properties we are studying in electrostatics. Electrostatics. बेटा बहुत ध्यान से, electrostatic means charges at rest. ठीक है। After that, हमने एक दूसरी बॉडी इसके पास ली या इससे टच करा दी। Now the charge is flowing from one matter to another matter. जैसे कि चार्ज फ्लो कर रहा है कहाँ, वायर्स में। हमारे घर में चार्जेस का फ्लो होता है, वर्क डन होता है, ओके, उससे फैन चलता है, उससे एसी चलता है। ओके, ईच एंड एवरीथिंग इज रनिंग विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्जेस। ओके, सो एट दैट टाइम वी से द चार्ज इज एट मोशन। सो व्हेनेवर द चार्ज इज एट मोशन, देन अगेन देयर आर लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज we have seen there. So all those properties we have studied in current electricity. Okay, so whenever the charge is at motion, we studied the properties
in current electricity. Okay, so here in electrostatics we have two chapters, chapter 1 and chapter 2. Okay, chapter 1 is electric field, electric charges and field, and chapter 2 is there electric potential and capacitance, electric potential and capacitance. तो दोनों चैप्टर हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाएंगे. दिस इज यूनिट 1. और इसके बाद में फिर हम चार्जेस को फ्लो कराएंगे. whenever the charges are flowing, at that time the charges shows different type of properties, and those we are studied in electric current or the current electricity. okay, so ये हमारा होगा चैप्टर 3. यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 एंड 2, और ये हमारा एक यूनिट है, ये हमारा यूनिट 8 मार्क्स का होगा, और ये जो हमारा यूनिट है ये हमारा होगा 8 मार्क्स. मींस पहले दो चैप्टर यानी कि द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट 8 मार्क्स में पूछा जाएगा, एंड द स्टडी ऑफ चार्जेस एट मोशन भी 8 मार्क्स में पूछा जाएगा. तो 16 मार्क्स के आपके ये 3 चैप्टर्स होंगे. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो बेसिक थिंग है यहाँ तक का आपको समझ में आया, कैसे बॉडी को चार्ज किया. आफ्टर दैट द स्टडी एट रेस्ट और एट स्टैटिक चार्जेस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. देन आफ्टर दैट द स्टडी ऑफ चार्जेस एट मोशन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. फिर हम यहाँ और उसको हम डायनामिक चार्ज भी बोलते हैं. इज इट क्लियर? रिस्पॉन्ड करिए बेटा जल्दी फटाफट. Till here you all understand? Yes sir. Yes sir. Okay. Yes sir. Very good. अब हम देखते हैं बेटा यहाँ से आगे. हमने यहाँ देख लिया कि कैसे बॉडीज चार्ज हुई और क्या. अब यहाँ पे साइंटिस्ट जो यहाँ स्टार्टिंग में आए वो आए बेंजामिन फ्रैंकलिन. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट आए वो बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाली कहानी यहाँ तक ये बता दी. ठीक. आफ्टर दैट अब यहाँ पे सपोज वी हैव 2 बॉडीज. जैसे मेरे पास में अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे पास में स्केल है और मेरे पास में यहाँ पे ये एक चौक है, और हमने कहीं से भी इनको रब किया. अब हम ये देख सकते हैं कि बाय अट्रैक्शन और रिपल्सन these two bodies are charged, okay, or these two bodies are not charged. देखिए हम ये पता नहीं लगा सकते कि whether the body is positively charged or whether the body is negatively charged. ठीक है. अब इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक सीरीज बनाई और डिफरेंट बॉडीज को डिफरेंट बॉडीज के साथ में रब किया और रब करते और उन्होंने फिर वहाँ पे एक सीरीज बना दी, और उस सीरीज को उन्होंने फिर बताया कि फॉर्मर इन सीरीज पॉजिटिव है और वो हमारा जो डिसेंडिंग इन सीरीज है नेगेटिव. ठीक है. तो ये अब हम यहाँ पे आगे समझेंगे. और फिर हम इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए मैं आपको सीरीज लिखवाऊंगा, ये आपको समझ में आना चाहिए क्या है. इनिशियली हमने पढ़ लिया कि हमारे पास में कोई भी मैटर है, इनिशियली वो न्यूट्रल है. जैसे ही हमने किसी बॉडी के साथ में उसको रब किया, दैट वी डोंट नो कि वेदर आफ्टर रबिंग दैट मैटर इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज. बट साइंटिस्टों ने क्या किया, इनको रब कर के और एक सीरीज बनाई, और सीरीज को फिर उन्होंने अपने तरीके से बताया कि विच वन इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड विच वन इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी, एंड दैट सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज. तो वो सीरीज हमारी कौन सी थी, वो सीरीज हमारी हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज. तो अब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में आपको लिखवा देता हूँ, और फिर यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज की हेल्प से
किसी भी अननोन चार्ज बॉडी को देख पाएंगे कि वेदर दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और दिस इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी. ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज. ठीक है, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज लिख देता हूं. नंबर फर्स्ट, फर बेटा होता है बिल्ली के बाल, ठीक है, या फिर हमारे कॉमन जो बाल होते हैं, दैट इज फर. नाउ सेकंड इज फ्लैनल. नंबर थर्ड इज हेयर सीलिंग वैक्स. ये कुछ वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे इसमें कि जो आपने पहली बार ही सुने होंगे कई. ओके, नाउ ग्लास. नाउ आफ्टर दैट कॉटन. नाउ आफ्टर दैट पेपर. नाउ आफ्टर दैट सिल्क. दिस इज सिल्क. नाउ आफ्टर दैट human body. Human body. And number 9 is here wood. Number 10 metal. Number 11 rubber. Okay, number 12 is plastic. Number 13, that is amber, then sulfur. Sulfur. Now after that number 15 or 16, ebonite और गुटका पर्चा. Ebonite, अब देखिए बेटे समझ लीजिए सभी. फर का मतलब होता है बिल्ली के बाल, ठीक है, फर. फ्लैनल, फ्लैनल आपका ये प्लास्टिक के जैसा हमारा होता है, ठीक है, फ्लैनल. आफ्टर द सीलिंग वैक्स, ये मोम होता है, सीलिंग वैक्स. ग्लास, कांच होता है. कॉटन, ठीक है, कॉटन आपका आप जानते हो कॉटन क्या होता है. ओके, नाउ दिस इज पेपर. पेपर, सिल्क, ठीक है, रेशम, सिल्क. ह्यूमन बॉडी, मेटल, रबर, प्लास्टिक. अंबर, अंबर ये एक प्लांट होता है, पेड़ होता है, ठीक है, एक ट्री होता है अंबर का, ठीक. इसके बाद में सल्फर. ओके, सल्फर एलिमेंट है. देन एबोनाइट. क्या होता है बेटा? एबोनाइट स्विच जो हमारे होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी के जो स्विच जो बनते हैं वो एबोनाइट से बनते हैं. दिस इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एबोनाइट. ओके, हमें लगता हुआ ऐसा है कि ये हमारे प्लास्टिक के बने हुए हैं, लेकिन वो प्लास्टिक से कहीं ज्यादा इंसुलेटर होते हैं, ठीक है. सो दैट इज एबोनाइट. इलेक्ट्रिक स्विचेस बनते हैं. गुट्टा पर्चा, ये भी हमारा क्या होता है? प्लांट होता है, ये पेड़ होता है. ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में बेटा क्या किया कि साइंटिस्ट ने सपोज ये फ्लैनल और फर को आपस में रब किया, तो उन्होंने क्या बताया कि फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फ्लैनल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है. यानी फॉर्मर इन सीरीज. जैसे सपोज मान के चलिए हमने ग्लास को और फर के साथ में क्या किया? रब किया, तो फर के पास में पॉजिटिव आएगा, ग्लास के पास में नेगेटिव आएगा, ठीक है. यहाँ देखिए, यानी फर से जो नीचे होंगे सीरीज में, इनके साथ में हम किसी को भी अगर फर के साथ में क्या करेंगे? रब करेंगे, तो फर के साथ पॉजिटिव आएगा और नीचे वाली सबके साथ में क्या आएगा? नेगेटिव. अच्छा, अब देखिए, सपोज मान के चलिए हमने कॉटन को ग्लास के साथ में रब किया, कॉटन को ग्लास के साथ में रब किया, तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव आएगा और कॉटन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. मींस जो फॉर्मर सीरीज है उसके पास पॉजिटिव आएगा, और जो फॉर्मर इन सीरीज नहीं है, यानी जो सीरीज में नीचे है,
उसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए दोबारा से एक एग्जांपल, सपोज हमने प्लास्टिक को और रब किया ह्यूमन बॉडी के साथ में, प्लास्टिक को ह्यूमन बॉडी के साथ में रब किया तो ह्यूमन बॉडी के पास में पॉजिटिव आएगा और प्लास्टिक के पास में नेगेटिव आएगा। नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो फॉर्मर इन सीरीज है उसके पास पॉजिटिव और जो फॉर्मर इन सीरीज नहीं है जो बाद में आएगा उसके पास नेगेटिवली चार्ज आएगा। ओके, नाउ सपोज यू थिंक दैट कि मैंने एबोनाइट रॉड लिया, देयर इज वन एबोनाइट रॉड एंड दिस इज रब विद सिल्क, एबोनाइट रॉड इज रब विद सिल्क, सो किसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, किसके, आइए बेटा जल्दी, एबोनाइट रॉड इज रब विद सिल्क, so which is having positively charged and which is having negatively charged? Anyone? सब सिल्क पे पॉजिटिव आएगा। किस पे पॉजिटिव आएगा, किस पे पॉजिटिव आएगा, सिल्क पे पॉजिटिव आएगा और एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, सिल्क पे पॉजिटिव आएगा, नहीं फॉर्मर इन सीरीज जो है उस पे पॉजिटिव और जो नीचे है सीरीज में उस पे नेगेटिव। ठीक है।